আমি সাজিব খানকে অনুরোধ করব আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশনে। সন্তু খালসা 9 বল থেকে 36 রান, দুর্দান্ত একটা ইনিংস খেলেছে। তার হাতে ট্রফি তুলে দিচ্ছেন কিউবিস্টের কর্ণধার সাজিব খান এবং সঙ্গে 5,000 টাকার পুরস্কার। এই পুরস্কারের সৌজন্যে কিউবিস্ট ওনার সাজিব খান এবং সঙ্গে আয়ুষ রকার্সের পক্ষ থেকে একটি আপার এবং লোয়ার সেট। 9 বল থেকে 36 রান, ম্যান অফ দ্য ম্যাচ সন্তু খালসা, থ্যাঙ্কস টু কিউবিস্ট সাজিব খান। তো এটা ছিল আমাদের পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন সেকেন্ড ম্যাচের জন্য গ্রুপ বির। পরবর্তী ম্যাচ গ্রুপ বির থার্ড ম্যাচ। প্রথম ম্যাচের উইনার জেবিএল কান্দ্রা ভার্সাস দ্বিতীয় ম্যাচের উইনার রোহন দাস 11 দেবায়ুষ 11 খড়গপুর। তারা মুখোমুখি হবে। এই ম্যাচে যে দল জয়লাভ করবে তারা সরাসরি পৌঁছে যাবে কোয়ার্টার ফাইনালে এবং সেই ম্যাচের লাইভ অ্যাকশন নিয়ে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি কমেন্ট্রি বক্সে। তো ইতিমধ্যেই আমাদের টস পর্ব সম্পন্ন হলো গ্রুপ বি তৃতীয় ম্যাচের জন্য, যেখানে রোহন দাস দেবায়ুষ 11 খড়গপুর, অন্যদিকে জেবিএল কান্দ্রা, এই দুটো দল মুখোমুখি হবে। টসে জয়লাভ করেছে রোহন দাস দেবায়ুষ 11 খড়গপুর এবং তারা টসে জয়লাভ করে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, অর্থাৎ ব্যাট করবে জেবিএল কান্দ্রা। 6 ওভার্স ম্যাচ, 6 ওভারের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। আমরা লাইভ অ্যাকশন নিয়ে সরাসরি পৌঁছে যাচ্ছি কমেন্ট্রি বক্সে রবিদার কাছে। ইস্ট ক্যালকাটা ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস কাউন্সিল গ্রাউন্ডে আবার আমরা ফিরে এলাম আজকে গ্রুপ বির তৃতীয় ম্যাচে এবং এই ম্যাচ থেকে যারা জিতবেন তারা কিন্তু পৌঁছে যাবেন কোয়ার্টার ফাইনালে। বিশাল ব্রাদার্স অ্যান্ড বিএ কনস্ট্রাকশন, যাদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছে কলকাতা চ্যাম্পিয়নশিপ 2022 এবং এই চ্যাম্পিয়ন লিগের প্রথম দুটি ম্যাচ থেকে যেখানে আমরা দেখলাম প্রথম ম্যাচে কিন্তু জেবিএল কান্দ্রা যারা হারিয়েছিল গ্রিন ওয়ারিয়ার্স দলকে এবং দ্বিতীয় ম্যাচ মাস 11 ভার্সেস রোহন দাস 11 খড়গপুর দলের মধ্যে এবং এই ম্যাচে কিন্তু রোহন দাস দেবায়ুষ খড়গপুর যারা কিন্তু জয়লাভ করে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় ম্যাচ শুরু হবে। প্রথম ম্যাচের বিজয়ী দল জেবিএল কান্দ্রা, যারা মুখোমুখি হবে রোহন দাস 11 দেবায়ুষ 11-এর সাথে এবং যেখানে প্রথমে টসে জয়লাভ করেছে দেবায়ুষ। রোহন দাস টসে জয়লাভ করে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আমন্ত্রণ জানিয়েছেন জেবিএল কান্দ্রাকে। রোহন দাস দেবায়ুষ খড়গপুর অভিযান টসে জিতেই কিন্তু প্রথমে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এদিকে এই ম্যাচের শুরু হওয়ার প্রস্তুতি চলছে। আবার আমরা অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবো বিশাল ব্রাদার্সের বিশাল প্রসাদকে এবং বিএ কনস্ট্রাকশনের কর্ণধার দাউদ আনসারিকে, কো পাওয়ার বাই আয়ুষ রকার্স কর্ণধার রাজ হাংসগুপ্তা। টুর্নামেন্টের অবশ্যই ধন্যবাদ জানাতে প্রথমবার রাজ হাংসগুপ্তার হাত ধরে বাংলার
যেখানে আন্তর্জাতিক মানের কিন্তু লাইভ ফুটেজ এনে দিয়েছে 70 স্পোর্টস লাইভ। তারই সৈয়দকে আমরা স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানাবো আমরা এই টুর্নামেন্টে পিচ কেটারকে বিচ টুকে, যিনি এত সুন্দর একটা পিচ উপহার দিয়েছেন, এবং বুবাইদাকে, তাকেও আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো। সর্বোপরি এই ম্যাচের পরেই কিন্তু আরও দুটি ম্যাচ রয়েছে, চতুর্থ এবং পঞ্চম ম্যাচ। আমরা একটু দেখে নেব আমাদের প্রথম গ্রুপ থেকে, গ্রুপ এ থেকে যে দুটি দল ইতিমধ্যে ছাড়পত্র পেয়েছে কোয়ার্টার ফাইনালে, ভগবানপুর গ্রিন গ্রুপ এবং স্কুল বাজার ফ্রেন্ড রিক্রিয়েশন। আর এই ম্যাচ থেকে আমরা তৃতীয় দলকে পাবো, অর্থাৎ তৃতীয় দল কারা যাবেন কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে। একদিকে জেবিএল কাঁদরা এবং অপরদিকে রোহনদাস দেবায়ুষ 11 খড়গপুর। আমরা দেখতে পাচ্ছি ম্যাচ অফিসিয়াল মাঠে প্রবেশ করেছেন। এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন দল পাবেন 5 লক্ষ টাকা এবং সুদৃশ্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, এবং দ্বিতীয় দল অর্থাৎ সেকেন্ড বেস্ট টিম রানার্স দল পাবেন 3 লক্ষ টাকা, সাথে সুদৃশ্য চ্যাম্পিয়ন্স বিজিত ট্রফি, এবং সাথে তৃতীয় স্থান এবং চতুর্থ স্থানের জন্য যে লড়াই, যারা তৃতীয় স্থান দখল করবে 1 লক্ষ টাকার সঙ্গে সুদৃশ্য ট্রফি, এবং চতুর্থ স্থানের জন্য 50,000 টাকা এবং সুদৃশ্য ট্রফি। ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট পুরস্কার একেবারে 4 হুইলার আকর্ষণীয় অল্টো 800 4 হুইলার, এবং ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ফাইনালে ইয়ামা R15 2 হুইলার। প্রত্যেকটি ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার 5,000 টি শার্ট এবং লোয়ার সেট। প্রথম বল যেখানে কিন্তু ওয়াইড করে বসলেন বোলার রিন্টু। শুরু হলো সীমান অতিরিক্ত হাত ধরে কিন্তু পথ চলা। জেবিএল কাঁদরার সংগৃহীত রান 1 ওয়াইডের হাত ধরে পিকু পাল। আবারও কিন্তু দ্বিতীয় বল, যদিও এই বলটি কিন্তু আবার অতিরিক্ত নো বল। প্রথম বলটি ওয়াইড ছিল, দ্বিতীয় বল নো বল। ওভার এখনো শুরু হয়নি, কিন্তু দুটি বোনাস রান পেয়ে গেলেন জেবিএল কাঁদরা। এই ম্যাচটিও কিন্তু 6 ওভারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। আমাদের এই ম্যাচে যারা জিতবেন তারা কিন্তু তৃতীয় দল হিসাবে কোয়ালিফাই করবেন কিন্তু শেষ 8 অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালে। পরের বল রিন্টু, এবার কিন্তু খারাপ শট, স্লটে বল ছিল, সামনের দিকে খেলার চেষ্টা, এবং বলটি কিন্তু ফ্রি হিট, যদিও আগের বলটি নো ছিল। আর এদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফ্রি হিট বল থেকে যে লাভটা তুলতে চাইছিলেন সেই লাভ কিন্তু তুলতে পারেনি পিকু পাল। মাঝে একটি রান হয়েছে। দলের রান এই নিয়ে মোট যদি আমরা দেখি এখনো পর্যন্ত সংগৃহীত হচ্ছে 3, অতিরিক্ত 2, একটি নো বল এবং একটি ওয়াইড। রিন্টু পশ্চিম মেদিনীপুরে চন্দ্রকোনা টাউনের খেলোয়াড়, যিনি ওই দূর প্রান্ত থেকে তার প্রথম ওভার, দলেরও প্রথম ওভার শুরু করেছেন। সঞ্জু কানোজিয়া বাঁহাতি এবং ডানহাতি যে কম্বিনেশন, একটি রান ব্যাট থেকে এসছে, 2টি রান অতিরিক্ত হাত ধরে। এবার অফ স্টাম্পের বাইরে সাপুল করে খেলে দিয়েছেন, বল কিন্তু চলে যাচ্ছে মাঠের বাইরে, ওভার বাউন্ডারি। এই ম্যাচের প্রথম ওভার বাউন্ডারি সঞ্জু কানোজিয়ার ব্যাট থেকে। সঞ্জু কানোজিয়া প্রথম থেকে কামিজ ছিলেন যে অফ স্টাম্পের বাইরে সাপুল করে গিয়ে জায়গা করে খুব সাবলীলভাবে খেলবেন, এবং মিডিংটা কিন্তু ভালো ছিল, পাওয়ার ছিল শটে। আর এই ওভার বাউন্ডারির সুবাদে দলীয় রান জেবিএল কাঁদরা তাদের সংগৃহীত রান 9 বিনা উইকেটে। আবার রদবদল দেখতে পেলাম, যেহেতু পাওয়ার প্লে চলছে, আসছি পরে সে কথায়। এবার রিভার্স সুইপ খেলার চেষ্টা ছিল, যদিও বল খুব একটা বাউন্স হয়নি। উইকেট রক্ষক বাবলুর হাত ধরে আবার ফেরত চলে যাচ্ছে বোলারের কাছে। এই ওভারে 3টি বল হয়েছে। রিন্টু ফুল টস, এবং ফুল টস বলেও কিন্তু সঞ্জু কানোজিয়া পাঠিয়ে দেন বাউন্ডারি হিসেবে 4টি রান।
4 রান। এই ওভারে একটি বাউন্ডারি, একটি ওভার বাউন্ডারি হয়েছে। দলের রান 1 লাফে পৌঁছে গেল 13-তে। বিশাল ব্রাদার্স অ্যান্ড ডিএ কনস্ট্রাকশন উদ্যোগে আপনারা দেখছেন বিশাল ব্রাদার্স অ্যান্ড ডিএ কনস্ট্রাকশন প্রেজেন্টস কলকাতা চ্যাম্পিয়ন লিগ 2022-এর গ্রুপ বির তৃতীয় ম্যাচ। গ্রুপ বির এই ম্যাচ থেকে যারা জিতবেন তারা কিন্তু পৌঁছে যাবেন কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে। এরপরে যে চতুর্থ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে, প্রথম ম্যাচের লুজার অর্থাৎ গ্রিন ওয়ারিয়ার এবং সেকেন্ড ম্যাচের লুজার অর্থাৎ মাস 11 রোহনদাস 11 খড়গপুর মধ্যে যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল মাস 11-এর সাথে কিন্তু অনুষ্ঠিত হবে। তারপরে শেষ ম্যাচ অর্থাৎ এই ম্যাচে যারা লুজার হবেন তার সাথে চতুর্থ ম্যাচের উইনার যারা হবেন তাদের সাথে কিন্তু শেষ খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে। বলতে বলতে পরের বল, যদিও ফিল্ডার ছিল অনেকটা দূরে, ডান দিকে সরে গিয়ে যতক্ষণে ফিল্ডিং হলো ততক্ষণে কিন্তু প্রান্ত বদল ঘটে গেল। প্রথম দুটি অতিরিক্ত রানের পরে যেন বোলার কিছুটা হলেও একটি ওভার বাউন্ডারি ইতিমধ্যে কিন্তু এই ওভারে এসছে। দলের রান 14। শেষ বল, প্রথম ওভারের শেষ বল, লো ফুল টস, পিকু পাল এটিও পাঠিয়ে দিয়েছেন কিন্তু অবলীলায় মাঠের বাইরে এবং শেষ বল থেকে ওভার বাউন্ডারি। এই ওভারের দ্বিতীয় ওভার বাউন্ডারি, ওভার শেষের সংকেত জানিয়ে দিলেন কিন্তু ম্যাচ অফিসিয়াল। দলের রান 20। তিনটি বল থেকে 7টি রান এবং 4টি বল খেলে 11টি রান সঞ্জু কানোজিয়া। পিকু যেখানে 7টি রান করেছে 3টি বল খেলে। টুর্নামেন্টের আজকের মতো আগামীকালও আপনারা দেখবেন একই ফরম্যাটে খেলা। আগামীকালকে যে সমস্ত দলগুলো রয়েছে, গ্রুপ সির এনএস বয়েজ ভার্সেস রাউনাক 11, দ্বিতীয় ম্যাচ হবে জেভিএ ব্রাদার্স এবং আর্য স্পোর্টস আরিয়া স্পোর্টস। তারপরে একই ফরম্যাটে খেলা, প্রথম ম্যাচের বিজয়ী দ্বিতীয় ম্যাচের বিজয়ীর সাথে ম্যাচ। চতুর্থ ম্যাচ হবে আগামীকাল একই ফরম্যাটে, প্রথম ম্যাচে লুজার দ্বিতীয় ম্যাচে লুজারের সাথে, এবং পঞ্চম ম্যাচ হবে থার্ড ম্যাচে লুজার এবং ফোর্থ ম্যাচের উইনার সাথে। তারপরে গ্রুপ ডি অ্যাঞ্জেল কলকাতা এবং মনীষ 11 ঝাড়গ্রাম। বিট্টু প্রথম বলে কিন্তু স্বাগত জানালো, প্রথম বলে কিন্তু ওভার বাউন্ডারি দিয়ে শুরু করলো সঞ্জু কানোজিয়া। আর সঙ্গে সঙ্গে 6টি রান কিন্তু বাড়লো, 1.1 ওভারে 26। যে কথা বলছিলাম, আগামীকালকে গ্রুপ ডি যে ম্যাচ রয়েছে অ্যাঞ্জেল কলকাতা এবং মনীষ 11 ঝাড়গ্রামের মধ্যে, দ্বিতীয় ম্যাচ জেকে 11 মেদিনীপুর এবং দুর্গাপুর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব। বিট্টু সামনের দিকে খেলেছেন সার্কেলের ভেতরে, ফিল্ডার টিবলা ছিলেন খুব তৎপর। ব্যাটসম্যান দ্বয় কিন্তু তৎপরতা দেখাতে পারেনি কারণ এত দ্রুত ফিল্ডিং হলো। 26 বর্তমান রানটির যদি আমরা দেখি 19.50। বলতে বলতে পরের বল, এবারে কিন্তু ঘুরিয়ে দিয়েছেন, বল চলে যাচ্ছে মাঠের বাইরে। সঞ্জু কানোজিয়া আজকে যেন দাপুটে ব্যাটিং করছেন, জানেন এই ম্যাচটা জিততে পারলেই শেষ 8-এ কিন্তু জায়গা পাকা হবে, তাই প্রথম থেকে একেবারে আক্রমক মোডে রয়েছেন। আর সঞ্জু কানোজিয়া 7 বল থেকে 23 রান সংগ্রহ করেছেন, দলের রান 32, 1.3 ওভারে। কলকাতা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের এই ম্যাচের পরে কিন্তু আরো দুটি ম্যাচের খেলা, 4টি বিভাগে 4টি করে দল কিন্তু অংশগ্রহণ করছে এবং প্রত্যেকটি বিভাগ থেকে 2টি করে দল কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনালে কোয়ালিফাই করবেন। বিট্টু অনেকটা দৌড়ে বল করছেন, কানোজিয়া ড্রাইভ, সুইপার কভারে ফিল্ডার মিস ফিল্ডিং এবং 4টি রান। মিস ফিল্ডিং এর জন্য বল কিন্তু চলে গেল ফিল্ডারকে বিট করে মাঠের বাইরে, 4টি রান। সমর্থকরা খুশি হতে পারেনি এরকম ফিল্ডিং দেখার পরে। বড় মঞ্চ, বড় প্ল্যাটফর্ম, ফিল্ডিং
সোনু খান। অবশ্যই সোনু খান যথেষ্ট ভালো ফিল্ডার, অনেক সময়ও আমরা দেখেছি বল বহু যারা ভালো ফিল্ডিং করেন তাদেরকেও বিট হতে, এক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে বিট হলেন কিন্তু সোনু খান। আবার সেই সোনু খানের কাছে না, শেষ মুহূর্তে ধরে রাখতে পারেনি, কারণ 4-4টে রান। কোনো ফিল্ডার যদি মিসফিল্ডিং করে বল কিন্তু তাকে আবার ফলো করে, এবং সেখানে কিন্তু পরপর আমরা দেখলাম 2 বলে 2টি বাউন্ডারি, শেষ 2টি বলে 8টি রান সংগৃহীত হয়েছে, শেষ 3টি বলে 14 রান। এখনো পর্যন্ত এই ওভারে 5টি বল থেকে যদি আমরা দেখি, আর 5টি বল থেকে এখনো সংগৃহীত হয়েছে 20টি রান। ধন্যবাদ রাজেশ। শেষ বল, দলের রান 40 1.5 ওভারে। জেবিএল কাঁদরা এবং অপরদিকে দেবায়ুষ 11 খড়গপুর। বলতে বলতে শেষ বল, শেষ বলেও কিন্তু 4টি রান। একেবারে ধ্বংসাত্মক ব্যাটিং করলেন কিন্তু এই ওভারে সঞ্জু কানোজিয়া, এবং নিশ্চিতভাবে জেবিএল কাঁদরার পক্ষে একটি প্রোডাক্টিভ ওভার ছিল। কিভাবে একের পর এক বাউন্ডারি ওভার বাউন্ডারি, এই ওভারে কিন্তু আমরা দেখলাম সঞ্জু কানোজিয়ার ব্যাট থেকে 10 বলে 35 আর 3টি বল থেকে 7 রান করেছেন পিকু। দলের রান 44 2 ওভারে 22.00। এই ওভারে 3টে বাউন্ডারি, 2টো ওভার বাউন্ডারির সঙ্গে তো একটি মাত্র বল ডট হয়েছে। বিট্টু প্রথম ওভারটি কিন্তু 24 রান দিয়ে ফেললেন, কোনো উইকেট পাননি। বিশাল ব্রাদার্স ডিএ কনস্ট্রাকশন প্রেজেন্টস কলকাতা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2022, কো পাওয়ার বাই আইস রকার্স, কর্ণধার রাজহাংস গুপ্তা, এবং স্পেশালি থ্যাঙ্কস থাকবে বাংলা বুকে প্রথমবার অবশ্যই মহারাষ্ট্রের 70 স্পোর্টস লাইভ সম্প্রচার করছে, এবং আন্তর্জাতিক মানে তারা কিন্তু সমস্ত ফুটেজ তুলে ধরছে। আমরা স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানাবো অবশ্যই আমাদের এডিটর যিনি রয়েছেন, এডিটরের দায়িত্বে বিপুল এবং ডনকে, আর ক্যামেরাম্যান যারা আছেন আমায়, সতীশ, দেবেন, ভায়োদা, বিনীত, স্যান্ডি, সৌরভ, গণেশ, রাহুল, ওঙ্কার, ইয়াস, চিন্ময়। আমাদের অনলাইন স্কোরিংয়ের দায়িত্বে রয়েছেন সাগর। প্রত্যেককে আমরা থ্যাঙ্কস জানাবো। পিকু, অপরদিকে সঞ্জু। এবার ব্যাট করবেন পিকু, তিনি ক্রিকেটে বাহুবলী, যাকে দেখার জন্য মন ছটপট করে তার ভক্তদের, এবং বিশেষ করে রদবদল দেখতে পাচ্ছি আমরা। বিট্টু সম্ভবত স্লিপে চলে আসবেন এবং ডি ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে চলে গেলেন ডিবলা। তৃতীয় ওভারের প্রথম বল, সুমন প্রথম বল জায়গা করেছেন এবং পাওয়ারফুল শট, বল কিন্তু উড়ে উড়ে চলে গেল একেবারে মাঠের বাইরে। প্রথম বলে কিন্তু স্বাগত জানালো পিকু ওভার বাউন্ডারি দিয়ে। 50 পূর্ণ হয়ে গেল। জেবিএল কাঁদরা দলের সমর্থকরা তারাও কিন্তু খুশি হলেন। 2.1 ওভারে 50। পিকু 4 বলে 13 রানে অপরাজিত। 10 বলে 35 সঞ্জু কানোজিয়া। পরের বল, অর্থাৎ এই ওভারের দ্বিতীয় বল থেকে একটি রান কিন্তু এলো। একটি রান করার অর্থ পিকু রান বাড়লো, দলেরও রান বাড়লো 51। পার্টনারশিপ যদি আমরা দেখি এখনো পর্যন্ত, আর 51টি রান হয়েছে এখনো পর্যন্ত 51 বলে। মাঝে একটি নো বল ছিল। 2.2 ওভারে 51, কারেন্ট রান রেট 21.86। সুমন রাও 2টি বল থেকে 7টি রান দিয়েছেন। তৃতীয় বল তুলে মেরেছেন, বল লং অন অঞ্চলে ফিল্ডার রমেশ ছিলেন ফিল্ডিং করবা ফাঁকে, কিন্তু ব্যাটসম্যানেরা রান করতে কিন্তু ভুল করেননি। জানেন প্রত্যেকটা বলে বলে রান করতে হবে, মাঝে মাঝে কিন্তু বড় শটে যেতে হবে। একটি রান করার অর্থ রান কিন্তু বাড়ল, অর্থাৎ এই নিয়ে মোট রান হলো 52 জেবিএল কাঁদরা দলের। বলতে বলতে আবারও একটি বল, আবার সেই রমেশ
আজকে কিন্তু অসাধারণ ফিল্ডিং করছেন, যেভাবে অতন্দ্র প্রহরীর মতো ওই জায়গাটা কিন্তু আগলে রেখেছেন। একটিও বল তিনি কিন্তু মিস করেননি। দলীয় রান 53। যদিও আবার একটি রান পাবেন লং লেগ অঞ্চলে ফিল্ডার। একটি রান হচ্ছে 54-তে পৌঁছে গেল দল। তিপান্ন হয়েছে সংগৃহীত রান, আগের বলটি ডট ছিল। শেষ বলে কিন্তু ওভার বাউন্ডারি কনজিয়ার ব্যাট থেকে। শেষ বল থেকে ওভার বাউন্ডারি, অর্থাৎ দল পৌঁছে গেল 59 রানে। 3 ওভারে 59, 19.67। এই হারে কিন্তু সংগৃহীত হয়েছে জেবিএল কান্দ্রা দলের। 7 বলে 15 পিকু পাল, 12 বলে 42 সঞ্জু কনজিয়া। আর সুমন এই ওভারে 15টি রান দিয়েছেন, কোনো উইকেট পাননি, কারণ এখনো পর্যন্ত কিন্তু কোনো উইকেটের পতন হয়নি। রাত এগিয়ে যাচ্ছে, তবু যারা ক্রিকেট প্রিয় মানুষ তারা কিন্তু রয়েছেন মাঠে, এবং প্রচুর এই মুহূর্তে কিন্তু ইউটিউবে প্রচুর মানুষ এখনো দেখছেন প্রথম দিনের তৃতীয় ম্যাচ। আর নতুন ওভার শুরু হবে, আমি আমন্ত্রণ জানাবো আফাফুলকে। थैंक यू रविदा। 3 ओवर के बाद स्कोर अगर देखें 59 रन को विकेट ने। अच्छी सी बात यहाँ पे पीकू और संजू जिस तरह से पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप रही है अभी तक। ओवर की अगली बॉल, हवाई शॉट काफी ऊपर गेंद है, पीछे फील्डर भाग रहे वहां पे, कैच का कॉल और आराम से यहाँ पे आते ही विकेट दिलाया। यहाँ पे ओवर की पहली बॉल पे टप्पू आए बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट मिले। यहाँ पे पीकू जाएंगे डग आउट। विकेट नंबर 1, कैप्टन डिपार्ट्स टू द पवेलियन, फर्स्ट विकेट डाउन। तो पहला विकेट यहां पे गवाते हुए नंबर 3 पे आ रहा बैटिंग करने सोनू दास। पीकू आउट हुए उसके बाद सोनू दास आ रहा है बैटिंग करने के लिए नंबर 3 पे। एक तरफ पीकू आए थे बैटिंग करने, साथ में संजू, लेकिन पीकू अपना विकेट गवाया और संजू एक तरफ है अभी भी और सोनू दास आए बैटिंग करने के लिए। तो पहली बॉल पे विकेट मिलना और इससे अच्छी बात क्या होगी किसी गेंदबाज के लिए। सोनू दास फिलहाल नॉन स्ट्राइक पे, स्ट्राइक पे तैयार। संजू कनौजिया लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन अभी भी जारी। रोहन दास एंड देवायुष 11 टॉस के फील्डिंग करने का फैसला किया और स्ट्राइक पे संजू कनौजिया तैयार अगली बॉल के लिए। गेंदबाजी कर रहे टप्पू, आते पहली बॉल में विकेट मिला। ओवर की अगली गेंद, स्ट्राइक पे तैयार संजू। फील्ड पोजीशन को एक बार देख रहे हैं, थोड़ा देखना होगा किस तरह खेलते हैं। फुल टॉस गेंद, ग्लांस करने का प्रयास, रन मिलेंगे चाहे वो जैसे मिले, देखना होगा। बाय के रूप में 4 रन यहाँ पे मिलता हुआ, तो ये सब कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा रन बचाने होंगे जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे। बाय के रूप में 4 रन। नाउ स्कोर में 63, 63 रन, 1 विकेट अभी तक, चौथा ओवर जारी। ग्लांस करने का प्रयास, यहाँ पे शॉट खेलते भाग पड़े हैं, सिंगल के लिए आसानी से और स्कोर बढ़ेगा फिर से। 64 रन, लेग बैक रूप में 1 रन। स्ट्राइक पे आया सोनू दास। चौसठ रन, 1 विकेट, चौथा ओवर जारी। एक तरफ सोनू दास, एक तरफ संजू। जरूर चाहेंगे यहाँ से 6 ओवर तक कम से कम 110 115 तक सेट करें, क्योंकि अभी भी इसके बाद 2 ओवर बाकी, एक बड़ा ओवर लेना चाहेंगे। सोनू दास स्ट्राइक पे सामना करेंगे टप्पू का। इस ओवर अब तक 4 रन, 1 विकेट इनके नाम। अगली बॉल आते ही सोनू दास अपने अंदाज में लॉन्ग ऑफ कवर की तरफ, गेंद बाउंड्री से काफी दूर, 6 रन के लिए। छक्के के साथ सोनू दास अपनी पारी की शुरुआत करते हुए और स्कोर
स्कोर जा पहुंचा 70 रन, 1 विकेट अभी तक, चौथा ओवर जारी। सत्तर रन अब तक, 1 विकेट, चौथा ओवर जारी। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग लाइव देख रहे हैं। अभी भी कोलकाता चैंपियंस लीग आज पहला दिन बहुत ही शानदार रहा अभी तक। अगर बात करें शुरुआत जिस तरह हुई थी, श्रीवत्स गोस्वामी, श्रेया पांडे हमारे बीच में आए थे आज सुबह में, उसके बाद फिर शाम के वक्त में पीयूष चावला इंडियन क्रिकेटर तो यहाँ पे देखने को मिले थे हम लोगों को। तो कुल मिलाकर देखें तो आज का दिन, आज की शाम, आज की रात बहुत अच्छा रहा अभी तक। 70 रन, 1 विकेट, ओवर के अभी भी 2 बॉल बाकी इस ओवर में। सत्तर रन, 1 विकेट अभी तक। स्ट्राइक पे तैयार सोनू दास फिर से एक बार, पहली बॉल छक्के के साथ पारी की शुरुआत करते हुए अपनी पारी में। टोपो बॉलिंग कर रहे हैं, अब तक शुरुआत अच्छा था इनका, लेकिन यहाँ पे जैसे रन पड़े तो थोड़े से मायूस होंगे। ओवर की अगली बॉल सोनू दास स्ट्राइक पे सामना करेंगे फिर से एक बार। और फुल टॉस गेंद देखिए, आते ही 2 बॉल पे 2 छक्के। तो 2 छक्के सोनू दास के बल्ले से आता हुआ, लगातार 2 बॉल पे 2 छक्के, स्कोर पहुंचा 76 रन बोर्ड पे। फॉर 1, 76 रन, 1 विकेट, चौथा ओवर जारी। ओवर की आखिरी बॉल, सोनू दास स्ट्राइक पे अब तक 2 छक्के लगा चुके हैं। छिहत्तर रन, 1 विकेट अभी तक कुल मिलाकर। ओवर की आखिरी बॉल और सोनू दास अपने अंदाज में बैटिंग करते हुए। नेक्स्ट बॉल, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, और इसी के साथ डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। टप्पू अच्छा ओवर कह सकते हैं, मात्र 12 रन इस ओवर से, साथ में 1 विकेट, 2 विकेट इस ओवर से। और चलता क्या सोनू दास को इस वक्त अगर देखें तो 76 रन, 2 विकेट, 4 ओवर के बाद JBL कांद्रा 76 for 2 ऑफ इंडिया 4 ओवर्स। नवीन हुडा है बैटिंग करने के लिए। 2 विकेट गंवाने के बाद नवीन हुडा बैटिंग करेंगे। 76 रन, 2 विकेट, और अभी 2 ओवर का खेल बाकी। जरूर चाहेंगे एक अच्छा फिनिश यहाँ पे करें। एज ए फिनिशर टीम में हमेशा इनको देखा जाता है जब जब बात होती है इनकी। नवीन हुडा है, सोनू प्रसाद है, तो लंबा बैटिंग लाइनअप इस टीम की। नवीन हुडा बैटिंग करेंगे और फिलहाल नॉन स्ट्राइक पे नवीन हुडा, स्ट्राइक पे संजू कनौजिया। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन अभी भी जारी। सुमन है बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद सामने, आराम से खेले, कोई रन इस बॉल से। छिहत्तर रन, 2 विकेट, 5वां ओवर जारी। सुमन बॉलिंग कर रहे हैं, संजू एक तरफ, 14 बॉल 42 रन। नवीन हुडा कोई रन नहीं अब तक, नॉन स्ट्राइक पे वो खड़े हैं। संजू स्ट्राइक पे। नेक्स्ट बॉल, और लीजिए यहाँ पे सफल कर, थोड़ा अंदर गए थे, स्क्वायर लेग के ऊपर बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए संजू कनौजिया। नाउ स्कोर मूव 82, 82 रन, 2 विकेट कुल मिलाकर। और संजू पहुंचेंगे 48, 48 रन, 2 रन दूर अपने हाफ सेंचुरी से।
15 बॉल खेले 48 रन इस पारी में। বাইরে বলগুলো নিয়ে আসবে, বল দায়িত্ব যারা রয়েছেন বলগুলো নিয়ে আসবে। नेक्स्ट बॉल स्ट्राइक पे तैयार संजू, और यहाँ पे देखिए बीट किया फील्डर को, गैप में गेंद, कोई मौका नहीं, 4 रन के लिए। इसी चौके के साथ 50 पूरा तो संजू का। वेल प्लेड संजू, एक बार बैट दिखाया दर्शकों को। 52 स्कोर, जस्ट 16 बॉल, 16 बॉल में 52 रन संजू कनौजिया। तो लीजिए इस बार कितना देर रोकेंगे इनको। पिछले बॉल पे बाउंड्री, यहाँ पे ओवर बाउंड्री। छक्के के साथ स्कोर पहुंचा 92, 92 रन, 2 विकेट, 5वां ओवर जारी। संजू कनौजिया 17 बॉल 58 इस पारी में अभी तक। संजू कनौजिया यहाँ पे देखिए 58 रन 17 बॉल में, 6 छक्के 5 चौके अब तक इस पारी में, 2 सिंगल और 4 डॉट बॉल। तो ये दर्शाता है किस तरह से ये बैटिंग की है पूरे इनिंग्स में अभी तक। और फिर से एक बार स्लाइस करने का प्रयास गली की तरफ, पीछे फील्डर तैयार है, सिंगल मिला आसानी से। 2 की मांग, ओवर थ्रो काफी तेज, यस नो एक बार फिर से, लेकिन सही टाइम पे अंदर आए वापस, कोई नुकसान नहीं, सिंगल मिला। आखिरी बॉल बाकी है भी इस ओवर की। सुमन बॉलिंग कर रहे हैं, 93 रन, 2 विकेट, 5वें ओवर की आखिरी बॉल। स्ट्राइक पे तैयार नवीन हुडा। तो रनों की तलाश में है भी दोनों बल्लेबाज, लेकिन इतने आसानी से रन नहीं बन रहे। 94 रन स्कोरबोर्ड, ओवर की हुई समाप्ति। 94 रन, 2 विकेट आफ्टर एंड ऑफ 5 ओवर्स। जेबीएल कंदरा 94 पे 2, 5 ओवर के बाद जेबीएल कंदरा। पांच ओवर 94 रन, 2 विकेट। आखिरी ओवर कौन आएंगे बॉलिंग करने के लिए, ये देखना होगा। तो टोपू आ रहा है बॉलिंग करने के लिए आखिरी ओवर। पांच ओवर 94, 2 विकेट अभी तक। जेबीएल कंदरा अच्छे टोटल की तरफ बढ़ते हुए सामना करेंगे नवीन हुडा इस इनिंग्स में। पहली बॉल अपने पारी में। बड़े शॉट की तलाश में तो है, लेकिन इतनी आसानी से यहाँ पे रन बनने दे नहीं रहे। चौरानवे रन, 2 विकेट अभी तक। आखिरी 5 बॉल शेष अभी भी। और रूम बना के कट करने की कोशिश, गेंद कीपर के हाथ में निकल गई, कोई रन इस बॉल से। संजू कनौजिया अगर बात करें, और नवीन हुडा अब तक पार्टनरशिप 18 रनों की साझेदारी हो चुकी है मात्र 8 बॉल में। तो यहाँ देखिए स्ट्राइक चेंज करना चाह रहे थे नवीन हुडा, और स्ट्राइक पे आ गया संजू कनौजिया, और सैक्रिफाइस करना पड़ा नवीन हुडा को। विकेट नंबर 3।
94 रन, 2 विकेट अभी तक कुल मिलाकर। सोनू प्रसाद आए बैटिंग करने के लिए एक तरफ, और एक तरफ 3 विकेट गंवा दिए। सोनू प्रसाद आए बैटिंग करने, और साथ में संजू कनौजिया। स्ट्राइक पे संजू, नॉन स्ट्राइक पे सोनू प्रसाद, लेकिन यहाँ पे अच्छी वापसी करते हुए डॉट बॉल को रन नहीं, 94 रन, 3 विकेट अभी तक कुल मिलाकर। आखिरी ओवर जारी। फुल टॉस गेंद ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाया स्क्वायर की तरफ। गेंदों की मांग जरूर करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सोनू प्रसाद को भी शायद। जी हाँ, मुस्कुरा रहे वो भी। सिंगल मिलेगा और स्कोर पहुंचा 95 रन, 95 पे 4 विकेट। 95 पर 4। आखिरी बॉल इस इनिंग्स की, क्या 100 का आंकड़ा छू पाएंगे? और राहुल वर्मा है बैटिंग करने, फिलहाल वो होंगे नॉन स्ट्राइक पे। पंचानवे रन, 4 विकेट। आखिरी बॉल इस पारी की। संजू अब तक काफी अच्छी लाइन में दिख रहे हैं। 20 बॉल खेले, 60 रन। क्या फिनिश कर पाएंगे बाउंड्री, ओवर बाउंड्री के साथ में? गेंद बचाएंगे टोपू, कम से कम बाउंड्री, ओवर बाउंड्री ना दे यहाँ से। 95 अब तक स्कोर बोर्ड पे। आखिरी बॉल तो लीजिए, अंत भला तो सब भला। छक्के के साथ स्कोर पहुंचा 101 रन, 101। दैट मींस टारगेट 102। 102 बनाने होंगे जीतने के लिए रोहन दास एंड देवायुष 11 को। 6 ओवर, 101 रन, 4 विकेट, और कमाल की बल्लेबाजी संजू कनौजिया। ये देखिए रिप्ले में, इस तरह कुछ ये शॉट लगाया था कवर की तरफ, और टप्पू 19 रन दिए टोटल अपने स्पिल में, 2 विकेट उनके नाम। तो ये देखिए बैटिंग की अगर बात करें, स्कोर कार्ड, पीकू आए थे बैटिंग करने, 8 बॉल 15, अच्छा स्टार्ट, लेकिन उस पारी को बड़ा नहीं कर पाया। संजू कनौजिया 21 बॉल 66 रन, सोनू दास 4 बॉल में 12 रन, और नवीन हुडा 1 रन बना के रन आउट हुए। तो जीत के लिए बनाने होंगे 102 रन, टारगेट 102। और गेंदबाजी की अगर बात करें, रिंटू 1 ओवर 20 रन, सुमन 2 ओवर 35 रन, कोई विकेट नहीं। टोपू 2 ओवर 19, 2 विकेट। अच्छी गेंदबाजी कहेंगे आप इनकी गेंदबाजी में। बिट्टू 1 ओवर 24 रन। तो कुल मिलाकर 101 रन। तो जीतने के लिए चाहिए 36 गेंद, यानी 6 ओवर में 102 रन इस मैच को। तो दूसरी पारी की शुरुआत होगी, और तो दूसरे पारी की शुरुआत होगी, और कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन। अभिषेक, वेलकम अभिषेक। नेक्स्ट मैच किसका है देख, टॉस पे रन आ दोनों हारे हैं, दोनों लूजर, 1 और 2 लूजर है। बैटरी है इसमें। सुबह से चल रहा है, अभी भी चल रहा है, जोर लगा दे। हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो चुप 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 हेलो 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 और यहाँ पर अच्छा चौका देखने को मिलता हुआ कोलकाता चैंपियंस लीग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से ये टूर्नामेंट अभी तक आपने देखा, इस बार फिर से उठा करके खेला बाउंड्री लाइन की तरफ एक टप्पे के बाद 4 के लिए, और इसी के साथ यहाँ पर स्कोर जैसे भी हो आगे बढ़ने चाहिए, और ये कोशिश लगातार यहाँ पर बल्लेबाज के द्वारा जारी। हेलो हेलो
और इस बार यहाँ पर अच्छा शॉट। और अरे ये क्या हुआ, फील्डर नीचे थे जरूर, लेकिन उन्होंने टपकाया इस कैच को। और इसी के साथ अब राहुल वर्मा जरूर निराश होंगे। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर के बाद स्कोर 11-12 यहाँ पर इस रन के साथ। यहाँ पे एक में 11 ही दिख रहा है, वो राहुल वर्मा। अच्छा टोटल 12, राहुल वर्मा 11। और इसी के साथ अब यहाँ पे दूसरे ओवर में अब किसे गेंदबाजी की जिम्मेवारी दी जाती है, देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन आकाश तेवतिया यहाँ पर अब नजर आ रहे हैं आपको स्क्रीन पर। एक बहुत अच्छा क्रिकेट जिसका कि आगाज आज आप सबने देखा। और अभी यहाँ पर JBL कांद्रा की टीम आपको नजर आ रही है, जिसमें कि कई सारे बड़े बड़े स्टार क्रिकेटर वो आपको नजर आ रहे हैं। अब इनके ऊपर जिम्मेवारी रहेगी आकाश तेवतिया के ऊपर कि ये कैसे अब गेंदबाजी करते हैं इस ओवर में। राहुल वर्मा का अच्छा ओवर घटा बीता है अभी तक। संजू कनौजिया जो कि बहुत तेज है, बहुत चपल है वहां पर ग्राउंड पर, जिन्होंने आज बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। 21 गेंदों में 66 रन इनके बल्ले से निकले। बहुत कमाल की बल्लेबाजी इनके द्वारा। यहाँ पे फील्डर के हाथ में गेंद और इस तरह से बैट्समैन बल्ला अब आउट होकर वापस पवेलियन लौटेंगे। इस तरह से पहला झटका अब टीम को लगेगा और यहाँ से इतने बड़े लक्ष्य को कैसे भेद पाती है ये देखना दिलचस्प रहता है हमेशा। लेकिन ऐसे कंडीशन में जब इतना बड़ा लक्ष्य मिलता है, इतना बड़ा टारगेट आपको मिलता है, तो उसे चेज करना आसान रहता है नहीं। और इसी के साथ आकाश तेवतिया बहुत अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में करते हुए नजर आ रहे। जिस तरह से पहले ही ओवर में इन्होंने दूसरी गेंद पर सफलता दिलाई टीम को। इस बार बहुत अच्छा शॉट है ये, बहुत अच्छा कनेक्शन है ये, 6 के लिए जाएगी। बैट्समैन संतू जिन्होंने की काफी अच्छी बल्लेबाजी की है।
और इसी के साथ अब यहाँ पर दूसरा झटका लगता हुआ टीम को दूसरे ओवर में, और आकाश को यहाँ पर मिलने वाली दूसरी सफलता। एक 102 रन का टारगेट मिला है टीम को, 102। और इसी के साथ यहाँ पर एक और छक्का आता हुआ, और इस छक्के के बाद स्कोर भी आगे बढ़ेगा फिलहाल। और इसी के साथ ये आखिरी गेंद आकाश तेवतिया की इस ओवर में अंतिम बार। यहां पर बल्ला को मोड़ा मिड विकेट की दिशा में, और रन्स आने चाहिए, और इस तरह से रन्स जुड़ता हुआ 2 ओवर के बाद स्कोर है 26, लॉस ऑफ 2 विकेट, और आकाश को इस ओवर में 2 सफलता। तो इस तरह से ये कोलकाता चैंपियंस लीग 2022 पहला एडिशन कमाल का वक्त बीतता हुआ। लगातार जिस तरह से ये आयोजन रहा है, जिस तरह से ये क्रिकेट टूर्नामेंट की नुमाइंदगी आप सब ने देखा है, वो बहुत अच्छा टूर्नामेंट अभी तक ऑर्गेनाइजेशन कमेटी, जो पूरी टीम लगातार जिस तरह से काम की है, जिस तरह से ये टूर्नामेंट रहा है, वो काफ़ी कमाल का रहा है। और इसी के साथ अब यहाँ पर एक बार फिर से राहुल वर्मा की इस गेंद को पिक किया था और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा। निश्चित तौर पर 6 रन मिलेंगे। बैट्समैन डिबला, जो कि बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते रहे टेनिस क्रिकेट की अगर बात की जाए, और उसी पैमाने पर खड़े उतरने की बहुत हद तक कोशिश इनकी, और लगातार कमाल की बल्लेबाजी यहां पर इनके द्वारा देखने को मिलता हुआ। और इसी के साथ यहां पर आयुष पॉल ने बहुत अच्छा कैच यहां पर राहुल वर्मा की गेंद पर। तो फाइनली राहुल वर्मा को भी सफलता मिली अपने दूसरे ओवर में और टीम के तीसरे ओवर में। तो बहुत शानदार वक्त जिस तरह से अभी तक इस क्रिकेट टूर्नामेंट के माध्यम से आप सबने देखा है, ये कोलकाता चैंपियंस लीग और यहां पर उठा दिया है, फिर कीपर के हाथों में सीधे गेंद जाएगी। और इसी के साथ यहां पर राहुल वर्मा को एक और सफलता फाइनली इस ओवर में।
तो इसी के साथ यहाँ पर लगातार बड़े बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश, कितने कामयाब होते और यहाँ पर फिलहाल अच्छा क्रिकेट देखने को मिलता हुआ कोलकाता चैंपियंस लीग 2022 में। ये तीसरे ओवर को राहुल वर्मा कंटिन्यू रखते हुए और इसी के साथ यहां पर बहुत ही शानदार शॉट सुमन के बल्ले से निकलता हुआ 6 रन के लिए। और तो यहां पे जैसे भी हो रन्स जुड़ने चाहिए। तीसरे ओवर में स्कोर 40, लॉस ऑफ 4 विकेट। और इसी के साथ 3 ओवर हुआ समाप्त। 3 के बाद 46, लॉस ऑफ 4 विकेट। और आगे के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे अपाफुल। थैंक यू। 3 ओवर के बाद 46 रन 4 विकेट। और अभी भी यहाँ से अगर देखें रिक्वायर्ड 118.67 यानी 19 के करीब हर ओवर बनाने होंगे यहाँ से। टारगेट 102 रन। 3 ओवर 46 रन 4 विकेट। एक तरफ बबलू एक तरफ सुमन। तो एक्सपीरियंस है इन दोनों खिलाड़ी के पास। और यहाँ से हालात को कैसे समझना होगा, कैसे आगे जाना होगा, इस बात को भली भांति जानते हैं। और गेंदबाजी के लिए बुलाएंगे यहाँ पे हिमांशु आ रहे गेंद की तरफ। देखना होगा चौथा ओवर हिमांशु किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी यहाँ से 19 के करीब है। तब तक ये मुकाबला अगर देखें बहुत ही बेहतरीन रहा अभी तक, क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए 101 रन बनाए बोर्ड पे, उसके जवाब में अभी तक अच्छा पीछा यहाँ पे करे, लेकिन 4 विकेट जो गवा दिए ये थोड़ी सी मुश्किल का विषय है। रोहन दास एंड देवायुष 11। स्ट्राइक बबलू पहली बॉल के लिए तैयार। बॉलिंग करेंगे हिमांशु। फर्स्ट बॉल। पहली बॉल बड़े आराम से स्टैंड एंड डिलीवर। बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए। तो उम्मीद अभी बाकी है, रात अभी बाकी है, इस बात को बबलू यहां पे बता रहे हैं। स्कोर पहुंचा 52। तो अब चाहिए 50 जीतने के लिए। 50 रिक्वायर्ड फ्रॉम दिस सिचुएशन। 50 नीडेड फ्रॉम 17 बॉल। 17 बॉल में चाहिए आप 50 जीतने के लिए। और यहाँ पे देखिए अपील काफी जोरदार। लेग बिफोर विकेट। विकेट के सामने पाए गए बबलू और जाना होगा यहाँ पे विकेट नंबर 5। आधी टीम डगआउट में। एक उम्मीद की किरण बन रहे थे बबलू, लेकिन अच्छी वापसी हिमांशु का। सीधे पांव पे गेंद लगी और जाएंगे डगआउट। विकेट नंबर 5। सोनू खान है बैटिंग करने के लिए। लेफ्ट हैंड बैट्समैन सोनू खान बैटिंग करेंगे। आमतौर पे ओपन करना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 विकेट गंवाने की बात है बैटिंग करने के लिए। एक तरफ सुमन, एक तरफ सोनू खान। जीतने के लिए चाहिए अभी भी यहाँ से 50 रन। 50 नीडेड फ्रॉम 16 बॉल। 16 बॉल में 50 बनाने होंगे। और हिमांशु पहली बॉल पे ओवर बाउंड्री, दूसरी बॉल पे विकेट। यहाँ पे अच्छी कमबैक यहाँ पे दिखाते हुए 50 रन अभी भी यहाँ से बनाने होंगे जीतने के लिए। और यहां से देख पा रहे सोनू दास बहुत ही फिट लग रहे हैं आज लॉन्ग ऑफ की तरफ।
ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड बॉल, यानी ये बॉल फिर से डालनी होगी। और तीसरे अंपायर की तरह रेफर किए हैं, क्या ये पिच से बाहर बॉल है या फिर अंदर है, चेक करेंगे यहाँ पे तीसरे अंपायर, क्योंकि एक्स्ट्रा रन तो मिलेंगे जरूर, या तो वाइड के रूप में या फिर नो बॉल के रूप में। तो तीसरे अंपायर चेक कर रहे हैं यहाँ पे, देखना होगा निर्णय क्या आता है। तो पिच से बाहर यानी नो बॉल दी गई है और अगली बॉल होगी फ्री हिट। तो मौका है यहाँ पे बल्लेबाज के पास, सोनू खान के पास, कि बड़े शॉट खेल सकते हैं बिना किसी जोखिम के। ये देखिए रिप्ले में बहुत ही बाहर गेंद थी पिच से, और बिल्कुल सही निर्णय मैच ऑफिशियल का। वाइड के रूप में 1 रन मिलेंगे, स्कोर बढ़ता हुआ 53। नो बॉल के रूप में 1 रन और स्कोर बढ़ता हुआ 53। रिक्वायर्ड रन रेट 14.70। वाइड बॉल यानी एक और एक्स्ट्रा रन फिर से। तो छक्के के साथ शुरुआत हुई थी, फिर विकेट, फिर नो बॉल, फिर वाइड बॉल। तो एक्स्ट्रा रन यहाँ पे आ रहे हैं। 54 स्कोर जा पहुंचा। रिक्वायर्ड 48 रन फ्रॉम 16 बॉल। 16 बॉल में 48 जीतने के लिए बनाने होंगे यहाँ से। सोनू दास अपने फैंस से बात कर रहे हैं, यहाँ से देख पा रहे हैं। बेहतरीन शॉट, और इस बार मौका मिला, जड़ दिया छक्का। उम्मीद कहीं ना कहीं कायम रखते हुए सोनू खान। ना स्कोर मूव 60 रन बोर्ड पे। जीतने के लिए बनाने होंगे 42 रन अभी यहां से। 15 बॉल का खेल बाकी। 15 बॉल में चाहिए 42 जीतने के लिए। सोनू दास थोड़े से निराश हुए, यहाँ पे गेंदबाज से बात कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ से रोका जाए, कैसे कमबैक की जाए। हैरान है सोनू दास। पूरी टीम कहीं ना कहीं यहाँ से वापसी करना चाहेगी। बिल्कुल मैच अभी भी बना हुआ दोनों टीम के लिए। नेक्स्ट बॉल, हवाई शॉट, काफी ऊपर गेंद है और देखी जाएगी यहाँ पे कुछ रन या फिर विकेट। और ये देखिए क्या कमाल का कैच है, बाउंड्री के करीब। राहुल वर्मा बिल्कुल खड़े हैं स्टैचू की तरह। तो देखना होगा निर्णय क्या था अंपायर का। और समरेशदा बहुत रिलैक्स मूड में फिर से एक बार। तो 42 रन चाहिए अभी भी जीतने के लिए। तो ये विकेट है या फिर ओवर बाउंड्री, देखना होगा। तीसरा पास चेक कर रहे हैं, फिर भी एक बार कंफर्म हो रहे हैं, हालांकि आउट है। वैसा बॉडी लैंग्वेज से अगर देखे तो 6 विकेट गवा दिए। सोनू खान जाएगा डग आउट 3 बॉल में 6 रन बनाकर। 60 रन 6 विकेट। जीतने के लिए चाहिए 14 बॉल में 42 रन। 42 रिक्वायर्ड फ्रॉम 14 बॉल्स। रिक्वायर्ड रन रेट 15.75 पर ओवर। 42 रन चाहिए जीतने के लिए। 14 बॉल का खेल बाकी अभी भी। करंट रन रेट 16.35। नेक्स्ट बॉल, डॉट बॉल, यानी अब यहां से वापसी जो करी है, बहुत ही बेहतरीन वापसी जेबिल कंद्रा। हिमांशु अब तक 2 विकेट हासिल कर चुके हैं अपने स्पेल में। तो तीसरे अंपायर यहाँ पे चेक करना चाहेंगे एक बार, यहाँ पे वाइड है या नहीं, देखना हो। तो वाइड बॉल है नहीं यहाँ पे। तो तीसरे अंपायर वही कह रहे, दिस इज नॉट ए वाइड बॉल। 60 रन अब तक कुल मिलाकर। 6 विकेट गवा दिए। चौथा ओवर जारी। गेंद रुक गया, इस बार वेट किया, हालांकि काफी ऊपर गेंद है। फिर से एक बार, और इस बार गेंद बाउंड्री से बाहर। 6 रन के लिए सुमन बेहतरीन शॉट लगाते हुए स्कोर पहुंचा 66 फॉर 6। आप अपने स्क्रीन पे देख पाएंगे। तो आखिरी 2 ओवर में चाहिए आप जीतने के लिए 36 रन। 36 नीडेड फ्रॉम 12 बॉल्स। 12 बॉल 36 जीतने के लिए।
4 ओवर के बाद 66 रन 6 विकेट। हिमांशु 20 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, 2 विकेट इस ओवर में। आयुष आकाश है बॉलिंग करने के लिए, आकाश सेवतिया बॉलिंग करेंगे और स्ट्राइक पे सामना करेंगे अनुराग। पहली बॉल इस बार विकेट के ऊपर से गेंद निकली, कोई रन नहीं इस बॉल से। अच्छी गेंदबाजी इस बार अंदर आती हुई गेंद, सिंगल के लिए भागेंगे, आसानी से पूरा करेंगे। स्कोर मूव 67। तो 10 बॉल का खेल बाकी अब इस मैच में अगर देखें तो। स्ट्राइक पे सुमन, हवाई शॉट कैच का कॉल है, क्या कैच के लिए जा पाएंगे फील्डर? पीछे पहुंचे और यहां पे गेंद निकल गई, बाउंड्री की बाहर, 4 रन के लिए। स्कोर मूव 71। तो 31 जीतने के लिए चाहिए अभी भी यहां से। 31 नीडेड फ्रॉम 10 बॉल्स। नो बॉल में 9 बॉल रिमेनिंग एंड रिक्वायर्ड 31 रन्स। इकहत्तर रन 6 विकेट, 5वां ओवर जारी। और अभी भी यहां से अगर देखें तो जीतने को चाहिए 31 रन, 9 बॉल का खेल बाकी है, 9 बॉल रिमेनिंग एंड रिक्वायर्ड 31। और ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल यहां पे। तो मैच में कहीं ना कहीं कुछ उम्मीदें भी नजर आता हुआ रोहन दास और देवयुष 11 के लिए। रिक्वायर्ड 30 रन फ्रॉम 9 बॉल्स, 9 बॉल में 30 जीतने के लिए। ओहो व्हाट शॉट, सीधे बल्ले देखिए, बेहतरीन शॉट, लेकिन फील्डर के हाथ में। तो जो उम्मीद बन रही थी वो उम्मीद कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ, 7वां झटका लगता हुआ। विकेट नंबर 7। और सुमन आउट हुए 24 बनाकर। हेलो हेलो 72 रन 7 विकेट, 5वां ओवर जारी है, अभी भी 7 विकेट गवा दिए। करंट रन रेट 15.42। तो यहां से वापसी करना मुश्किल नजर आता हुआ, क्योंकि टॉप ऑर्डर के 7 विकेट गवा दिए। टप्पू है बैटिंग करने के लिए। तो अभी भी यहां से 8 बॉल का खेल बाकी, 8 बॉल में चाहिए 30 रन जीतने के लिए। यानी हिसाब से देखें तो बाउंड्री पे ज्यादा जोर दिखाना होगा। आठ बॉल 30 जीतने के लिए, 30 नीडेड फ्रॉम 8 बॉल्स। हवाई शॉट की प्रयास यहाँ पे, गेंदबाज की तरफ और आसान से ये कैच यहाँ पे। विकेट नंबर 8, 8वां झटका लगता हुआ टोपू के रूप में। तो आखिरी 7 बॉल में चाहिए जीतने के लिए 30 रन, 30 नीडेड फ्रॉम 7 बॉल्स।
प्रयास तो बेहतरीन है, यहाँ पे रन मिलेंगे और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। तो चौके के 7 ओवर की समाप्ति, 76 रन 5 ओवर 8 विकेट के नुकसान पे। आखिरी ओवर में चाहिए जीतने के लिए अब 26 रन, 26 रिक्वायर्ड फ्रॉम 6 बॉल। रिंटू है बैटिंग करने के लिए और 7 बॉल में 6 जीतने के लिए अब यहाँ से 26 रन, 6 बॉल में 26 जीतने के लिए। और ये देखिए दर्शक कितने खुश है, अभी भी रात बहुत देर हो चुकी है, उसके बावजूद मैच का आनंद लेते हुए इस वक्त आपके स्क्रीन पे जीबीएल कंद्रा के मेंटर सुमन चटर्जी। 6 बॉल में चाहिए 26 जीतने के लिए, 26 रिक्वायर्ड फ्रॉम 6 बॉल। आयुष पाला बॉलिंग करने के लिए आखिरी ओवर इस पारी का, 6 बॉल में 26 जीतने के लिए चाहिए रोहन दास और देवायुष 11 को इस मुकाबले में। अनुराग स्ट्राइक पे, अनुराग शाह पहली बॉल, कोई रन नहीं, गेंदकीपर के हाथ में। 5 बॉल में चाहिए अब 26 जीतने के लिए। अनुराग साहा जब तक ये है तो उम्मीद करना कर लगा सकते हैं इनसे। आप बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और इस हालात को समझते हैं कैसे यहां से मैच निकालना चाहिए टीम के लिए। तो जीतने के चाहिए अब 4 बॉल में 20 रन, 20 नीडेड फ्रॉम 4 बॉल्स। नेक्स्ट बॉल, 4 बॉल में चाहिए अब 20 रन जीतने के लिए। और यू में हिट इस बार के लिए विकेट दिया और विकेट नंबर 9 अनुराग जाएंगे डग आउट। एक अच्छा कोशिश यहां पे देखने को मिला लेकिन अंत में टीम को मुश्किल में छोड़ के जाते हुए। बिट्टू आ रहा है बैटिंग करने के लिए। 3 बॉल अब तक इस ओवर में 82 रन, 9 विकेट टोटल अभी तक। तो 3 बॉल में चाहिए अब जीतने के लिए कुल मिलाकर अभी भी यहां से 20 रन और स्ट्राइक का सामना करेंगे बिट्टू। डॉट बॉल, यानी यहां से अब सिर्फ औपचारिकता कह सकते हैं आप। अगर देखें तो इस मैच में कुछ बचा नहीं है अभी तक। काफी अच्छा क्रिकेट खेले हैं जीबीएल कंद्रा। कैच का कॉल है, पीछे पिकू है कैप्टन टीम के, वो गलती नहीं करेंगे। पूरी टीम हुई ऑल आउट और ये मैच जीबीएल कंद्रा के नाम। और ये मैच जीबीएल कंद्रा के नाम और सोनू दास के चेहरे पे स्माइल। हेलो Like the video, subscribe to the